Hello, welcome to ASAP to all. Hello, finally the IPO season is back again. Today we are going to discuss about रोसारी IPO. आज हम डिस्कस करेंगे कि रोसारी IPO जो मार्केट न्यूज़ है कि आने वाला है वो कैसा है और रोसारी बायोटेक क्या करती है एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर रोसारी IPO एंड आपको क्या सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इस वीडियो को आखिरी तक देखिए हमारी फाइनल रिकमेंडेशन के लिए. चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है मार्केट का हाल. अगर आप देखो निफ्टी 50 का जब से SBI कैप्स का IPO आया मार्केट धड़ाम से गिरी एंड देन नाउ इट हैज सडनली रिकवर्ड बैक टू द ओल्ड लेवल्स एंड नाउ रोसारी IPO इज कमिंग. सो नॉर्मली एज वॉरेन बफेट ऑल्सो सेड वंस दैट आपको जब सब लोग डरे हुए हो तब इन्वेस्ट करना है, जब सब लोग ग्रीडी हो तब इन्वेस्ट नहीं करना. जब इस टाइम सब लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस सिचुएशन से, इसलिए यही सही टाइम है इन्वेस्ट करने का. तो चलो लेट्स फर्स्ट डू द KYC. नहीं आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी विल जस्ट डू द नो योर कंपनी बिकॉज वॉरेन बफेट ने ये भी बोला है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग. सो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. सो लेट्स फर्स्ट सी what exactly is this Rosari Biotech company. It's a specialty chemical company which was incorporated in 2003 as a partnership firm. Then in 2009 they later changed it to the company and changed the name to Rosari Biotech. It's one of the leading manufacturers in specialty chemicals. It has a factory in Silvassa which is in Dadar and Nagar Haveli. It has operations in India as well as 17 international foreign countries, and it offers customized solutions to the specific industrial requirements. If you see the overall product portfolio of this company, that is quite diverse. Right now if you see almost like 46% of the revenue comes from home personal care and performance brand, while the remaining other revenue is coming from textile as well as other operators also. So let's now analyze this company from the SWOT based using the SWOT analysis, which is a strength, weakness, opportunities and threat analysis. So if you first start with the strengths, what are the strengths of this company? They have a diverse portfolio, they have long standing and varied customers, largest textile specialty chemical manufacturers, wide sales network, they have strong R&D capabilities, and they have a strong experienced promoter base. So they are both the promoters are quite experienced. They have around 40 to 45 years of experience in this particular industry. So these are the few strengths of this particular company, and they have a robust financial trend also which is there. If you see the weaknesses of the company, there are a few weaknesses of the company. There is a small scale of operation. One is a possible promoter influence which may be there. The other one is the high current capacity utilization of 93%. Year-on-year growth is also reducing, and the brands are not sort famous. They have some brands on the consumer side, the B2C brand, but they are not famous. We have not heard anything about any particular brand. So these are a few of the weaknesses. If we move to the opportunity, there are immense opportunity. Let's say the business in which they are right now, and that particular business is growing by 5.4% globally, and in India 11.6%. Green chemicals is a big opportunity. Inorganic growth, so they can acquire a company, वो दूसरी company को acquire करके they can start expanding their operation. That's a big opportunity. Innovation और introducing वो नए products लेके आ सकती है कंपनी, उससे बहुत profit हो सकता है उनको. और अगर आप देखें capacity expansion है, अभी they are working on the Dahej plant for 1,32,000 MTPA capacity and 20,000 ton की capacity they are planning for the existing plant. So अभी एक पोटेंशियल है कि रेवेन्यू अपना डबल कर सकती है आने वाले एक साल के अंदर, बिकॉज दहेज प्लान एक साल के अंदर प्लान्ड है. तो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर डबलिंग ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो. थ्रेट्स अगर हम देखें तो डाउन टर्न इन कस्टमर का बिजनेस है. एक फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है. 65% ऑफ द रेवेन्यू इज आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कुछ होता है तो रेवेन्यू प्रॉफिट में बहुत बड़ा हिट आएगा. डिले दहेज प्लान के कंस्ट्रक्शन में कोई डिले होता है तो उसमें कोई इशू आ सकता है. गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज होती है, बिकॉज केमिकल्स को लेके बहुत पॉलिसीज बनती रहती है गवर्नमेंट के से, उसमें कुछ चेंज आता है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है. और अगर प्रमोटर्स अभी अगर अपने नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं बिजनेस तो उसके अंदर एक इम्पैक्ट आ सकता है. तो देयर आर फ्यू थ्रेट्स विच आर देयर. If we move to the IPO details, that is expected soon. So if you want to be aware about that, we'll be making a video about it. Just like this video and subscribe to this channel to get notified about that. What we know right now, let's discuss that. The face value of the share will be rupees 2. The total amount they are intending to raise is 150 crore rupees from the fresh issue of shares, and through the offer of sale, they are planning to sell 1.05 crore shares, and these shares will be sold by the two promoters. Half of shares will be sold by both the promoters. So that's the money which will be going to these promoters. So we have to note that the cost of the promoter, the
प्रमोटर ने शेयर आज तक एक्वायर करे हैं उसकी कॉस्ट 4 रुपये है सिर्फ। तो उस हिसाब से उनका जो भी प्रॉफिट होगा, अगर ये शेयर जितने भी लिस्ट होगा उसके हिसाब से उनका वो प्रॉफिट होगा। तो मेजॉरिटी पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है, सिर्फ 150 करोड़ कंपनी के अंदर आने वाला है। अगर हम देखा जाए तो लिस्टिंग वो NSE और BSE में कराने वाले हैं ये। और हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लॉज इशू देखा जाए तो 150 करोड़ जो कंपनी में आने वाले हैं उसमें से 65 करोड़ लोग रिपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे डेट की, 50 करोड़ दे विल यूज़ फॉर द वर्किंग कैपिटल फंडिंग, और बाकी का बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। सो देयर इज नो प्लान फॉर द ग्रोथ फ्रॉम दिस मनी। सो दैट्स अ बिट नेगेटिव बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट ज़्यादातर पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है और जो 150 करोड़ कंपनी में भी आ रहा है वो सिर्फ डेट रिपेमेंट में यूज़ हो रहा है, कोई ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। सो दैट्स अ नेगेटिव। बट या अगर कंपनी में डेट कम हो रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव है बिकॉज कंपनी फिर स्टेबल रहेगी। अगर हम वैल्यूएशन का के पॉइंट से देखा जाए तो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए इनके पीयर कंपनीज की, लाइक आरती इंडस्ट्रीज, विनाटी ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, सो एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.8x। अगर हम रोसारी का देखा जाए इस टाइम पे ओवर अमाउंट बुक वैल्यू क्या है वो 31.6 है, तो उसके आपसे वैल्यू पर शेयर आता है 153 रुपीज़। अगर हम मूव करें प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से तो एवरेज इंडस्ट्री की प्राइस अर्निंग रेशियो है 26.9, वाइल EPS जो है रोसारी को 9.44 है, तो आपकी वैल्यू आती है 254। सो एक फेयर एस्टिमेट करा जाए तो वैल्यू 153 रुपीज़ से 254 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आती है। अब देखना पड़ेगा कि इसका प्राइस कितना होता है, बिकॉज वॉरेन बफेट ने ये भी बोला है कि प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। सो अल्टीमेटली वैल्यू हमने निकाल ली 153 से लेकर 254 है, वो हमें मिल रही है अगर हम एक शेयर खरीदते हैं। बट जो उसका प्राइस होगा वो हमें देखना है वो किस रेंज में आता है। अगर लेट से प्राइस उसका इस रेंज के बीच में आता है देन इट्स अ गुड बाय। अगर वो प्राइस उसके ऊपर आता है, 250 के ऊपर प्राइस करते हैं इसको, देन उसकी वैल्यू 250 ही है। तो आपको अगर लेट से 300 रुपये आता है, आपको 300 रुपये देके 250 रुपये का स्टॉक मिलेगा, वैल्यू उसकी 250 रुपये ही है, तो वो आपके लिए लॉस है। अगर वो ही स्टॉक वो 100 रुपये में लॉन्च करते हैं, 100 रुपये का प्राइस करते हैं और आपकी वैल्यू है 150 से लेकर 250 के बीच में, देन आपके लिए वो प्रॉफिट है। सो यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू एंड प्राइस। दैट्स हाउ वॉरेन बफेट ऑल्सो थिंक्स अबाउट a particular investment. So thank you all for watching this video. Do subscribe to the channel for the next video which will be coming in when the price of this particular stock will be launched or the IPO will be launched. We will be making the video on that also. Thank you.